Hello, good morning student. Today we are going to learn here our new point of this lesson, that is ionic compound. Actually in our previous class we have learned the different type of chemical reaction of a metal. Actually we have learned the different type of chemical reaction is about the metal. That time we have learned the how many type of the chemical reaction. Yes, absolutely correct. Yes, we have learned the 6 type of the chemical reaction. ठीक है बेटा, we have learned there. Yes, our sixth type of the chemical reaction. Can you name the sixth type of the chemical reaction of metal? कौन बता सकता है? देखिए बेटा, metal react with a non-metal. Metal react with a non-metal. Actually, we have learned there. So, in this type of the chemical reaction of metal, we have learned the when metal react with non-metal, that time they give the products, that is a ionic compounds. We have learned the one example there. ठीक है, that's example. Do you remember it? That is a Na plus Cl. It gives NaCl, that is ionic compound. As well as we have learned the also different examples there. Do you remember? That is a MgCl. Mg plus Cl, it gives MgCl2. ठीक है ना बेटा, 2 MgCl. Actually we have learned there. ठीक है, देखिए ऐसे हम एग्जांपल्स वहाँ पे लर्न किए वाले हैं. एक्चुअली another example also we have learned there, that is a KCl, potassium plus chlorine, potassium chloride. ठीक है, so these are one have some examples we have learned. Yes, and these examples are ionic compounds. These are one have a ionic compound, NaCl, MgCl, yes, and KCl. Actually we have learned it. So we have go to details here about the ionic compounds. So let us we have start it. Students, we have learned here how the ions are formed, and for its I have shown the one diagrammatic representations of the structure form of atom. Structure form of atom. So in this structure I have tried to show one neutral atom. It may be any one, like a sodium, magnesium, aluminum is related to the metal, non-metal. We have put it yes as an example here. Yes, and try to learn how the ions are formed here. Actually ions are yes from the two type, that is one have positive and the negative. We have already known it. Actually this is a one yes ability of donating and accepting the electrons of the atom. Actually neutral atom, why? Because we say as a neutral atom, because neutral atom because they have a yes equal number of proton and neutron, and due to that having the equal number of proton and neutron, atoms are electrically neutral. ठीक है ना, देखिए ये हमें already we have known it. So these neutral atom, when neutral atom yes sometimes they loses the electron, and neutral atom sometimes they loses the electron yes, और sometimes it's gain the electron. कभी कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कभी कभी वो लूज करता है. इसके लिए भी बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है या गेन किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग देयर स्टेबिलिटी. ठीक है, तो स्टेबिलिटी धारण करने के लिए ये जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं तो कभी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कभी वो गेन करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है तो वहां पे क्या होता है बेटा, यस दे फॉर्म द कैटायंस. कैटायंस देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं, जैसे यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ए लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन एक होता है या एक से ज्यादा होते हैं. ठीक है, कभी कभी
एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन से लूज करते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्टेबिलिटी धारण करनी होती है। ठीक है, उसी तरह से गेन के लिए भी, जैसे कि एक आधे एटम को उनकी जो स्टेबिलिटी धारण करनी होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। एक्चुअली देखिए बेटा, दैट इज वन ऑफ डोनेटिंग एंड गेनिंग एबिलिटी ऑफ अ एटम फॉर ऑब्टेनिंग yes or the becoming fulfilled or the stable form, obtaining the stability there। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई एटम, जैसे मेटल हो तो लूज करेगा, नॉन मेटल हो तो गेन करेगा। देखिए बेटा, ये हमें पता है, मेटल हो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे नॉन मेटल हो तो वो गेन करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए बेटा वो जो प्रॉपर्टी लर्न की वाली थी, that is a sixth type of chemical reaction of metal, that is a related to the metal, that is a metal react with non metal, है ना। तो मेटल होते तो हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ए वाले लूज करेंगे, और जैसे नॉन मेटल हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं। और इसी जो एबिलिटी के कारण ये जो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दिखाई देती है मेटल को लेकर और नॉन मेटल को लेकर, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है ना बेटा। तो देखिए, तो इसी को लेकर यहाँ पे मेटल क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो यहाँ पे कैटायन बनते हैं। यहाँ पे क्या बन रहे बेटा, कैटायन। कैटायन इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज अ पॉजिटिव एलिमेंट, है ना, दैट इज अ पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, अभी जैसे पॉजिटिव आयन जैसे कि कैटायन बनते हैं, तो उनका साइज जो होता है यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट इज वन है वह, देखिए ए वाला साइज हमें यहाँ पे छोटा होते हुए दिखाई देता है। क्यों छोटा होता है, जब कैटायन बनता है, जैसे न्यूट्रल एटम से कैटायन बनता है तो उसका साइज छोटा होगा, कैटायन बनता है तो साइज छोटा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उनकी प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एक्चुअली यस इंक्रीज, बढ़ेगी। और जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, यस इनर अट्रैक्शन of atom is increases, and due to its size, yes, that is a small in size। ठीक है, अभी देखिए बेटा, एक्चुअली आयन के साथ क्या होता है, जैसे नॉन मेटल हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, वो गेन करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनायंस बनते हैं, इस कंपैरेटिवली लार्जर देन दी कैटायंस। कैटायंस आकार में छोटे होते हैं, इस एनायंस यहाँ पे उनका साइज क्या करेगा, लार्जर होगा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कम होती है। अभी जैसे ही प्रोटॉन की संख्या कम होगी तो यहाँ पे एनन का साइज क्या होगा बेटा, लार्जर होगा। तो देखिए ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, केवल समझ में आता है एनन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज बनता है बेटा, निगेटिव चार्ज बनता है। और कैटायन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्या मिल रहा है बेटा, अपोजिट चार्जेस हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए आयंस ऐसे बनते हैं। जैसे देखिए बेटा, हम अभी इसकी थ्योरी देखेंगे। तो थ्योरी में देखिए बेटा, हमें क्या लर्न करने के लिए मिलता है, जैसे कि कोई भी आयंस इस फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस किया जाता है। अभी ये गेन और लॉस करने वाले इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस किए जा सकते हैं, है ना। एक्चुअली देखिए बेटा, अभी ये जो होता है केवल सिंगल आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के द्वारा यहाँ पे बनता है। देखिए यही मैं यहाँ पे इस एटम स्ट्रक्चर में यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जैसे कि ये न्यूट्रल एटम है, सिंगल आइसोलेटेड। आइसोलेटेड यानी कि हमने जो कुछ चूज किया वाला है ना, जैसे सोडियम लिया वाला हो या कार्बन लिया वाला हो या नाइट्रोजन लिया वाला हो
यस, या मैग्नीशियम लिया वाला हो, कौन सा भी एटम हम यहाँ पे लेते हैं, आइसोलेट करते हैं, अभी उसी से हमें यहाँ पे आयंस यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, फॉर्म्स हो गए। ठीक है ना। अब ये जो फॉर्म्स होने वाले आयंस यहाँ पे कैटायंस बनाते हैं, जैसे कि मेटल को रिलेटेड हो तो कैटायंस देंगे, नॉन मेटल से रिलेटेड हो तो आनायंस देंगे। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे हमें ये अपोजिट चार्जेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो दीज आर वन है वो फॉर्मेशन ऑफ आयंस हियर, फॉर्मेशन ऑफ द आयंस हियर। सो वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Students, we have think here one question. What are the ionic compounds? Actually ionic compounds क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा यहाँ पे सोचते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो ionic compounds होते हैं, देखिए बेटा पहले वाले स्लाइड में हमने क्या लर्न किया है, yes, how the anions and cations are formed. Anions are, yes, that is one have a, yes, with charge, that's a negative, and cations are a positive, and these are one have opposite charges. So these are different two units, anion and cations, anion and cations, है ना बेटा। देखिए पहले वाले स्लाइड में उसको मैंने जैसे कि एटम के स्ट्रक्चर को लेके वहां पे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है बेटा, वो दो यूनिट, एक एनायन और एक कैटायंस। ठीक है। एंड दीज एनायंस एंड कैटायंस, यस, दीज आर द आयोनिक कंपाउंड। यही आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इसी यूनिट से, ये दोनों यूनिट से यहाँ पे कंपाउंड्स फॉर्म होता है। ठीक है बेटा। तो देखिए ये जो कैटायंस एंड एनायंस होते हैं, एक्चुअली दे आर अपोजिटली चार्ज्ड। जैसे कैटायन हो तो वहां पे प्लस चार्ज हमें दिखाई देता है, एनायन हो तो वहां पे हमें निगेटिव माइनस चार्ज वहां पे दिखाई देता है। अभी ये जो यहाँ पे चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और अपने देखिए बेटा फिजिक्स में रूल है ना, अपोजिट चार्ज हैव अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज हैव अट्रैक्शन, एंड निगेटिव जैसे जैसे इक्वल चार्ज हो तो सेम चार्ज हैव रिपल्शन। यस, दिस इज द वन लॉ ऑफ फिजिक्स एक्चुअली। सो इसी को लेकर देखिए बेटा, यहाँ पे दोनों चार्ज हमें कैसे मिल रहे हैं, भिन्न चार्ज मिल रहे हैं, अपोजिट चार्ज है, रिलेटेड टू विथ ईच अदर। अभी इस अपोजिट चार्ज में हमें क्या मिलता है बेटा, उसमें एक फोर्स बनता है। अभी ये जो फोर्स यहाँ पे मिलता है, इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। अभी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज है अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज है अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्ट हो गए, है ना। जैसे देखिए बेटा सेम चार्ज हो तो क्या होता है बेटा, दे शो द रिपल्शन, रिपल्शन। तो देखिए बेटा इसी लॉ के अनुसार यहाँ पे हमें वो दो जो यूनिट्स बन रहे हैं, जैसे कि कैटायन और एनायन, अपोजिट चार्ज होने के कारण इसमें हमें अट्रैक्शन मिलेगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये वाला फोर्स कौन सा है, दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिमेंबर इट, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए बेटा ये जो फोर्स यहाँ पे बन रहा है, ये यही जो फोर्स होता है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। यस, इट इज अ ionic bond, ionic bond. How the ionic bonds here, that is a donating and gaining the electrons, donating and gaining the electrons, लेन देन, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे लेन देन होती है। ठीक है बेटा, इंडिविजुअली देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेन देन किया जाता है, और यहाँ पे जो बाइंडिंग बनती है, इसी बाइंडिंग को यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बोला जाता है। Yes, it is one have a ionic bond here. Actually, ये जो ionic bonds बनते हैं, देखिए बेटा इसको मैं स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। देखिए बेटा, I have shown here, yes, these are one have a two atom. देखिए बेटा ये वाला एटम ग्रीन कलर में है, और ये वाला जैसे कि थोड़ा सा पिंक है, ये दूसरा एटम यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए बेटा ये वाला एटम यहाँ पे कौन सा है बेटा, देखिए यहाँ पे ये एटम हमें यहाँ पे कैटायन के रूप में मिल रहा है,
देखिए बेटा ये कैटायन क्यों है, क्योंकि इट्स बियर पॉजिटिव चार्ज। और ए वाला एटम यहाँ पे कौन है बेटा, दिस आर वन है वो एनायन, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज। चलिए, तो इसके द्वारा हमने यहाँ पे अपोजिट चार्ज को आइडेंटिफाई कर दिया। कैटायंस एंड एनायंस, दीज आर द सेपरेट यूनिट, है ना, दीज आर वन हैव अ कंपाउंड्स यस ऑफ टू यूनिट्स। अभी ये जो कंपाउंड्स यहाँ पे हमें दो यूनिट्स के मिल रहे हैं। जैसे देखिए बेटा ये जो कैटायंस होते हैं, तो कैटायन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, है ना। जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पोलराइज होते हैं। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन पोलराइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा वहां पे हमें क्या हो रहा है, यस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे जैसे कि क्या करते हैं बेटा, वो दूर ऐसे चले जाते हैं, है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अ डीफॉर्मिंग होता है। अभी इसी डीफॉर्मिंग के कारण, पोलराइजिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, जैसे आयन्स के ऊपर यहाँ पे यस क्या होता है बेटा, यहाँ पे पोलराइजिंग क्या होती है, पावर होती है। अभी पोलराइजिंग पावर यस के कारण यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को यस अट्रैक्ट कर लेते हैं, पूरी तरह से वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जैसे पूरी तरह से अट्रैक्ट करते हैं यानी कि गेन करते हैं, ठीक है। और ये वाला कैटन क्या कर रहा है बेटा, लूज कर रहा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोलराइज होते हैं, ठीक है, पोलराइज होते हैं, डिफॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे उसी समय यहाँ पे आनंद क्या करते हैं बेटा, वहां पे पोलराइजिंग पावर के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो उनमें यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, डोनेटिंग एंड गेनिंग। अभी इसी से वो दोनों भी एटम क्या बनते हैं बेटा, फुलफिल स्टेट, दैट इज दे ऑक्युपाई देयर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी को धारण कर लेते हैं। उसी समय वहां पे अपोजिट चार्ज के कारण, यहाँ पे ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स बनने के कारण यहाँ पे क्या होता है बेटा, आयोनिक बॉन्ड्स बनता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड्स, यस ओके। एंड ड्यू टू दैट फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड्स वी हैव ऑब्टेन हियर वन आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे हमें आयोनिक कंपाउंड मिलता है, ठीक है बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इसी तरह से हमने इस स्लाइड में क्या लर्न किया बेटा, तो आयंस जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये लर्न करने के लिए मिलता है। यस वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, here we will try to answer the one arising question. Simple question arise here, that is, are ionic compounds are electrically neutral? देखिए बेटा इसका आंसर हमें यहाँ पे यस यस मिलता है। तो देखिए इसको हम आंसर कर सकते, बिल्कुल ही इजी है ना बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको लर्न किया वाला है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो इसका आंसर क्या आता है यहाँ पे, द नंबर ऑफ द कैटायंस एंड द एनायंस। जैसे कि देखिए बेटा हमने कैटायन को लेकर देखा है, yes how they forms anions, how they forms actually these cations and anions yes in a compound, and the magnitude of the electric charges on them in such that positive and negative charges balance to with each other, है ना बेटा। as well as इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, that is a simply equal number of proton and electron, simply। देखिए बेटा इसी कारण yes as a result ionic compounds are electrically neutral। समझ में आ रहा है ना बेटा, एक सिंपल सा आंसर है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में यस पूछा जा सकता है, इट में भी, ठीक है। तो देखिए, तो एक सादे से क्वेश्चन को यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, आंसराइज कर दिया है। अगेन वी गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Students, we have learned here the characteristics of ionic compounds. In the characteristics of ionic compounds, yes, ionic compounds are crystalline in a nature। देखिए बेटा उनका जो नेचर होता है ionic compounds का,
क्रिस्टलाइन होता है। व्हाट इज द क्रिस्टलाइन? जैसे देखिए बेटा, जैसे हम सब्सटेंस को लर्न करते हैं तो दो तरह से सब्सटेंस होते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है और एक एमोर्फस के फॉर्म में होता है। जैसे क्रिस्टल हो तो जैसे सिंपली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जैसे हाथ में लेने के बाद जैसे उसका जो टच हमें महसूस होता है, दैट इज अ रफ इन टच क्रिस्टल के लिए। और एमोर्फस हो तो क्या होता है बेटा, जैसे हम उसको ऐसे टच करते हैं, है ना, फिंगर्स को लेकर ऐसे उसे हम महसूस करते हैं, उसका जो टच हमें फील होता है, वो कैसे फील होता है बेटा, सॉफ्ट, है ना, बहुत ही सॉफ्ट। जैसे हम बुड़बुड़ित बोलते हैं, खरबरित और बुड़बुड़ित, है ना। जो खरबरित दैट इज अ रफ टच किसका मिलता है हमें, क्रिस्टल का मिलता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मिलता है। और जो एमोर्फस होते हैं उसका जो टच होता है उसका हमें जैसे सॉफ्ट इन टच ऐसे दिखाई देता है। एक्चुअली देखिए बेटा, दूसरा वाले कैरेक्टर देखेंगे, जो क्रिस्टल के जो सरफेस होते हैं एक्चुअली डेफिनेट शेप होता है उसका, एंड स्मूथ एंड शाइनी। वो जैसे में शाइनी, जैसे नमक हो, जैसे कि शुगर क्रिस्टल हो, है ना बेटा। जैसे कि कोई भी क्रिस्टल, जैसे कि ग्लास का क्रिस्टल हम देखते हैं तो देखिए बेटा हमें वो स्मूथ सरफेस उसका स्मूथ होता है और शाइनी होता है। नमक को भी लेकर देखना है, जैसे सरफेस को हमें ऐसे, जैसे हमें पूरा ओवरऑल उसे टच करते तो रफ महसूस होता है, जैसे हमें सरफेस को जैसे हम यहाँ पे टच करते तो वहाँ पे स्मूथ एंड शाइनी होता है। देखिए बेटा, घर में अपने बहुत सारे क्रिस्टल है, जैसे कि शक्कर की जो दाने होते हैं ना, उसको क्रिस्टल को लर्न करो, ठीक है। या नमक हो तो नमक के जो बड़ा नमक होता है ना, वो उसी को लेकर हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस is in a solid responsible for the crystalline in nature। क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस, आयंस की जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई देती है, रेगुलर पैटर्न होता है उसका, रेगुलर पैटर्न, ठीक है बेटा। तो ये कैसे होता है हम नीचे फिगर के द्वारा उसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट, चलिए बेटा, तो यहाँ पे मैंने उसके स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर, आयंस कैसे अरेंज होते हैं, उसका रेगुलर पैटर्न कैसा होता है, यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को लेकर इसका स्ट्रक्चर, आयोनिक स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। बॉन्डिंग, हाउ द बॉन्डिंग फॉर्म्स इन सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सोडियम इज अ कैटायन, क्लोरीन इज अ एनायन। देखिए बेटा, ये अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए ये क्लोरीन, मैंने यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, देखिए बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बड़ा साइज यहाँ पे बताया है ना, क्योंकि ये कौन है बेटा, आनायन है, आनायन है ना। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, गेन करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, किए जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या होती है बेटा, जैसे कम होता है, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे कम होती है, और प्रोटॉन की संख्या कम होती है यहाँ तो अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा साइज यहाँ पे क्या होता है बेटा, बड़ा दिखाई देता है कैटायन की तुलना में। कैटायन यहाँ में छोटी दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे कैटायन ये छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, लूज करता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोटॉन बढ़ता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पे अट्रैक्शन, इनर अट्रैक्शन ये भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे साइज भी यहाँ पे क्या होती है बेटा, कम होगी। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज यहाँ पे कम होगी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, ये अलग दो यूनिट जैसे कि कंपोनेंट यहाँ पे यूनिट कंपोनेंट मिल रहे हैं, इस कैटायन के रूप में और एनायन के रूप में। और इसमें क्या बेटा, अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है वो ग्रेट अट्रैक्शन। व्हाट इज द attraction, which force here acting in between two atom, that is a electrostatic force, है ना बेटा। that is one how bond, यहाँ पे bonding हो रही है ना बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे बनता है। अभी
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण यहाँ पे देखिए बेटा ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें, तो देखिए बेटा एक पैटर्न है, देखिए ये सेम पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिख दिया है कि जैसे कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस, जैसे कि यहाँ पे आयंस की यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होती है ना, रेगुलरली। देखिए बेटा देखिए क्लोरीन, ये देखिए क्लोरीन, एक क्लोरीन क्लोरीन, जैसे यहाँ पे सोडियम, एक के बाद एक ऐसे रेगुलरली यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, जैसे हमें सक्सेसिव अल्टरनेट सक्सेसिव मैनर में यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अभी ये जो आयंस यहाँ पे अरेंज होते हैं, इसमें बाइंड होता है, तो यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे क्या स्टेट फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देती है, ठीक है बेटा। तो ये जो यहाँ पे क्रिस्टलाइन इन नेचर मिल रहा है, एक्चुअली इसी बाइंडिंग के कारण यहाँ पे इसके शेप भी अलग अलग मिलते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि ये हमने एक उदाहरण लिया है, एक इसको लेकर लिया है बेटा, जैसे कि NaCl को लेकर लिया है, NaCl, ठीक है, इसको लेकर ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, समझ में आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लर्न किया बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखिए बेटा मैं एक बार फिर उसे रीड करने का प्रयास करता हूँ। देखिए बेटा पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, सरफेस हैज अ डेफिनेट शेप एंड आर स्मूथ एंड शाइनी, ठीक है। इसके बाद थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहा है, देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन अ सॉलिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें इसके कैरेक्टर्स लर्न करने के लिए मिलते हैं, ठीक है बेटा। वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Actually, when any ionic compound formed, that time they show the certain crystal structure, solid forms के रूप में हमें दिखाई देता है। एक्चुअली इसके पीछे हमें दो फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, लर्न करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि देखिए बेटा यही पॉइंट हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बेटा, लर्न करने जा रहे हैं। जैसे देखिए बेटा टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, देखिए बेटा हम यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को लर्न करेंगे, है ना बेटा। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इस सॉलिड फॉर्म में जैसे मिलते हैं, इसी को हम यहाँ पे अभी लर्न करेंगे। देखिए बेटा दो फैक्टर, यस विच आर दे, देखिए बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो देखिए पहला फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर, दैट इज अ साइज ऑफ अ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयन। देखिए बेटा दूसरा वाला फैक्टर, that is the magnitude of the electrical charge on the ions. देखिए these are two important factors, yes those are affecting, yes okay, or responsible for a certain crystal structure of ionic compounds। क्योंकि ionic compound जब बनते हैं तो उनका definite size है ना, definite structure हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए बेटा ये जो बनता है ये केवल यहाँ पे जैसे कि जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें बॉन्डिंग होता है ना बेटा, एक अट्रैक्टिंग फोर्स यहाँ पे काम करता है। और ये कैसे काम करता है हमने यहाँ पे लर्न किया है, क्योंकि इसमें हमें अपोजिट फोर्स यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देता है। और ये अपोजिट फोर्स के कारण यस दे हैव अ ग्रेट अट्रैक्शन टू विथ ईच अदर एंड दे बाइंड टू विथ ईच अदर, यस बाय is donating and gaining the electrons। तो देखिए बेटा इसी कारण यहाँ पे हमें आयोनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं, इसी में हमें एक डेफिनेट शेप साइज दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर यस इन फॉर्म ऑफ सॉलिड के रूप में हमें दिखाई देता है। तो देखिए ये जो यहाँ पे अलग अलग शेप एंड साइज यहाँ पे दिखाई देते, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम को लेकर यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जैसे कि देखिए बेटा कभी कभी इनमें जो बाइंडिंग होती है आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में, तो यहाँ पे जैसे सिंपल क्यूब के रूप में दिखाई देती है, अट्रैक्शन फोर्स टू विथ ईच अदर। कभी कभी यहाँ पे टेट्रागोनल के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है। कभी कभी देखिए बेटा यहाँ पे
यहाँ पे क्या बेटा अर्थोफोम्बल के रूप में दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे जैसे रोम्बो हेड्रल के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये अलग अलग यहाँ पे शेप एंड साइज जैसे हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलते हैं। ये यहाँ पे एक कैसा होता है बेटा रेगुलर अरेंजमेंट या पैटर्न्स ऑफ द अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई देती है। इसी को लेकर यहाँ पे हमें सर्टन क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, लर्न करने के लिए मिलते हैं। देखिए बेटा फिर एक बार यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लर्न करेंगे। दैट इज यस रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ए सर्टेन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। दैट इज नंबर 1 साइज ऑफ द, देखिए बेटा यहाँ पे साइज ऑफ द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयन, और दूसरा वाला यहाँ पे क्या बेटा मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयंस। ठीक है, तो दीज पॉइंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट यस फॉर द obtaining the certain crystal structure of the ionic compounds. Just we will go to in our next slide. Student, we have tried to give answer one simple question. Yes, which questions is given here? That is, why melting point of ionic compound are high. चलिए बेटा इस क्वेश्चन का हमें यहाँ पे एक सादा सा सवाल यहाँ पे देना है। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए पहले हम आयोनिक कंपाउंड्स को तो लर्न कर चुके हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो बनते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं बेटा अलग अलग यहाँ पे आयंस होते हैं। तो वो अलग अलग जो एटम के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपोजिट चार्ज धारण होता है, और अपोजिट चार्ज धारण होने के कारण उनमें ग्रेट अट्रैक्शन बनता है। अभी वो जो अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इस कारण वो जो आयोनिक कंपाउंड मिलते हैं तो उसी का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है हाई होता है। और एक्चुअली वो जो बॉन्डिंग बनते हैं तो हमें वो रिजिड सॉलिड के रूप में दिखाई देते हैं। तो देखिए बेटा यही हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं। जैसे कि देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेपरिंग आयंस विच अपोजिट चार्जेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके जो अपोजिट चार्जेस होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, एंड दैट इज व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर हाई। देखिए बेटा ये आंसर यहाँ पे हमें मिलता है। ऑल्सो द आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखिए ऐसे हम इसको आंसर करना है। कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। Here we have give the information about the experimental activity, yes, which is essential for the to learning the properties of ionic compounds. चलिए बेटा आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी है यहाँ पे। तो इसी प्रॉपर्टी को लर्न करने के लिए हमें पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कैरी ऑन करना है। चलिए बेटा ये वाला एक्सपेरिमेंट इसकी एक्टिविटी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रख दी वाली है। एक्चुअली देखिए कभी भी हम जब एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करते हैं तो उसमें हमें कुछ रिक्वायरमेंट जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने नेसेसरी में हम यहाँ पे apparatus को लेकर देखेंगे। तो apparatus यहाँ पे देखिए बेटा हम यहाँ पे क्या क्या लेंगे, जैसे कि मेटल स्पैचुला है, बर्नर है। देखिए यहाँ पे मेटल स्पैचुला, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड, बीकर, सेल, लैम्प, प्रेस, की, इलेक्ट्रिकल वायर, ऐसे जो कुछ लगने वाले जो रिक्वायरमेंट है एपरेटस के रूप में हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। आफ्टर देन वी हैव कलेक्ट द केमिकल्स हियर। हमें यहाँ पे कुछ केमिकल्स भी लगने वाले हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें
सैंपल के रूप में सोडियम क्लोराइड लेना है, पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। दोनों में से एक हम जो मिलेगा जल्दी हमें अवेलेबल होगा उसे हम क्या करना है बेटा, लेना है एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे बेरियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, वाटर, ये वाले हम यहाँ पे केमिकल्स कलेक्ट करेंगे इस अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटी। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीजर को क्या करते हैं बेटा, कैरी ऑन करेंगे। तो देखिए इस प्रोसीजर में हमें क्या करना है, तो देखिए प्रोसीजर इज वेरी सिंपल वन देयर। हम यहाँ पे ऑब्जर्व द अबव सैंपल, yes, place the sample of one of the above salt on the spatula and heat it on the flame। देखिए बेटा, जो मेटल स्पैचुला हमने लिया वाला था, उस मेटल स्पैचुला के ऊपर या उसके द्वारा हमें यहाँ पे कोई भी जो हमने सैंपल चूज किया है, ऊपर में से हमें बहुत सारे केमिकल के सैंपल लिए वाले हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम आयोडाइड है या बेरियम क्लोराइड है। एक्चुअली उसमें से एक हम चूज कर वो सैंपल उस स्पैचुला के ऊपर लेंगे। जैसे देखिए बेटा, ये पहले वाली यहाँ पे डायग्राम में वो बताया है, जैसे कि स्पैचुला है, इसके ऊपर हमने वो सैंपल लिया वाला है। ठीक है, और हम बर्नर के फ्लेम के ऊपर उसे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, अभी जैसे होल्ड करते तो देखिए बेटा, रिपीट द प्रोसेस यूजिंग द अदर साल्ट, है ना, दूसरा साल्ट मिला तो हम दूसरे साल्ट को लेकर वो प्रोसीजर करेंगे। जैसे कि पहले हमने सोडियम क्लोराइड को लेकर किया, फिर बाद में हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेकर कर दिया, फिर बाद में हमने बेरियम क्लोराइड को लेकर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये वाली प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है। उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमें यहाँ पे रीडिंग के तौर पे ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे क्या करना है बेटा, उसे पुट डाउन करना है। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इस असेंबल दी इलेक्ट्रिक सेल। चलिए ये वाला, ये जो दूसरी फिगर दिखाई दे रही है ना बेटा डायग्राम, तो यहाँ पे हमने असेंबल कर दिया है ना। क्या असेंबल कर दिया बेटा, एक बीकर लिया है, बीकर में हमने क्या कर दिया बेटा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऐसे जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन है, ये वाला साल्ट सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने दो इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ऐड कर दिए, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रोड्स और ये वाला इलेक्ट्रोड। देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, यस, और ये वाला एक इलेक्ट्रोड, ऐसे दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, दैट इज अ साल्ट सॉल्यूशन, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे असेंबल कर दिया है यहाँ पे। फिर ये जो दो इलेक्ट्रोड के जो टर्मिनल है, ओपन टर्मिनल, इस ओपन टर्मिनल में हमें क्या कर दिया बेटा, वायर के द्वारा यहाँ पे सर्किट अरेंज कर दिया है ना। सर्किट में हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि एक बैटरी है ना, इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स यहाँ पे प्लग की, जैसे यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया है। एंड वी हैव असेंबल इट। समझ में आ रहा है बेटा, अभी हमने असेंबल कर दिया है। असेंबल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या लर्न करना है बेटा, अभी एक एक यहाँ पे जो केमिकल का जो साल्ट सॉल्यूशन है वो बनाकर यहाँ पे हमें सेपरेट उसको क्या करना है बेटा, अलग अलग यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग बीकर में हमें कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि एक बीकर में हम सैंपल पहला जैसे कि सोडियम क्लोराइड को लेकर अरेंज करेंगे, असेंबल करेंगे। दूसरा असेंबल हम किसके लिए करेंगे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड को। तीसरा असेंबल हम किसके लिए करेंगे, बेरियम क्लोराइड को। ऐसे तीन असेंबल हम यहाँ पे यूनिट्स बनाएंगे सेपरेट। ठीक है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं इसको। और इसके जो मिलने वाली रीडिंग है, ये रीडिंग हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में उसको पुट डाउन करना है। ठीक है, और इसको लेकर हमें यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी लर्न करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे आने वाले स्लाइड में। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न हियर द property of ionic compound. Actually, in our previous slide, we have learned the experimental activity. Yes, we have take their informations about the experimental activity and we have carried the procedure. Actually, when we carry the procedure, that time we have obtained some readings, and these reading we have put into
in our observation table, and we have learned this reading actually belonging to this experimental activity. Yes, we have learned here the properties of ionic compounds. चलिए, ये जो आयोनिक कंपाउंड की हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है, ये जो प्रॉपर्टी हमने पहले वाले स्लाइड में जो कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया है उसी को लेकर, उसमें से जो रीडिंग हमें मिलते थे उसी को लेकर हम जो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसी के द्वारा हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी को लर्न करेंगे। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं और ये IMP है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, तो पहली आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमें लर्न करने के लिए यहाँ पे एक एक को लेकर हम यहाँ पे लर्न करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी, द अट्रैक्शन फोर्स इज इन बिटवीन। जैसे कि दो आयन्स थे ना, cation anion, that is a positively and negatively charged ion, yes, is a strong, yes, okay, is strong होते हैं, and therefore the ionic compound exists in a solid and rigid form। कोई भी आयोनिक कंपाउंड हमें जब मिलता था वो सॉलिड के फॉर्म में, जैसे कि रिजिड है कि क्या बोलते हैं हम उसको, भक्कम है ना, स्ट्रॉन्ग, यस, रिजिडिटी, एक्चुअली उसी फॉर्म में हमें यहाँ पे मिलते थे आयोनिक कंपाउंड। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कि देखिए बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। कुछ आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे ब्रिटल यानी कि ठिसूल होते हैं। जैसे देखिए बेटा, इफ यू अप्लाई एनी फोर्स, यस, एनी ऑब्जेक्ट, दैट टाइम यस इट्स कन्वर्ट इनटू पाउडर। लेकिन एक्चुअली जैसे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड के रूप में, इसको जब हम प्रेशर क्रिएट करते हैं दैट टाइम yes, they do not convert into the powder form but it convert into the its small pieces। वो छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है बेटा, कन्वर्ट होते हुए दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमें यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर होते हुए दिखाई देता है। समझ में आता है? ये सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी देखिए बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, तो उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, क्योंकि अलग अलग आयंस होते हैं ना, जैसे कि देखिए बेटा, हमने पिछले वाले स्लाइड में सोडियम क्लोराइड को लेकर देखा था, सोडियम एंड क्लोरीन, ऐसे दो आयंस यहाँ पे क्या कर रहे थे बेटा, एक अट्रैक्शन यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है बेटा, तो ये हम यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देती है मेल्टिंग पॉइंट को लेकर और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। चलिए बेटा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल लर्न करने के लिए यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए बेटा, अब ये टेबल यहाँ पे लर्न करते हैं। तो इस टेबल में देखिए बेटा, हमें यहाँ पे कुछ आयोनिक कंपाउंड दिए वाले हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट किया है और बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए यहाँ पे पहला दिया है बेटा वाटर। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो वाटर होता है ये नॉन आयोनिक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 मिलता है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे देखिए बेटा, अभी यहाँ पे जिंक क्लोराइड है। ठीक है, जिंक क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है, जिंक Zn+ Cl-। चलिए बेटा, तो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड मिल रहा है जो जिंक क्लोराइड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पे 290 डिग्री सेल्सियस मिलता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 732 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है, यस, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 714, यस, ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट 1412 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की हमसे देखिए बेटा, दीज आर वेरी रिलेटेड टू यू, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, यस, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 800। ठीक है बेटा, 801 ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इसका हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिलता है 1465 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद NaBr सोडियम ब्रोमाइड है, तो सोडियम ब्रोमाइड इसका जो यहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे 7047। ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है।
इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट 1390 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड है यहाँ पे, इसका आयोनिक कंपाउंड है, इसका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 7072, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिलता है 1407। इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आयोनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मिलता है यहाँ पे 2852। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 3600 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, तो इसे यहाँ पे हमें अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलते हैं। देखिए बेटा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ पे देखे हैं, तो ये बहुत ही हाई है। कैसे यहाँ पे हाई है? ये क्यों हाई है? क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, आयोनिक कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आ गया? चलिए बेटा, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Student, we have learned here the next property of ionic compounds. Yes, okay. Ionic compounds are water soluble and not soluble into the organic solvent. चलिए बेटा, ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सोल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी वाटर में बताते हैं। लेकिन एक्चुअली देखिए बेटा, इस आयोनिक कंपाउंड को हम जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, इसमें हम जब ऐड करेंगे तो वहां पे वो सोल्यूबल प्रॉपर्टी नहीं दर्शाते, सोल्युबिलिटी वहां पे नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे हमें यहाँ पे एक रीजन मिलता है, वही रीजन यहाँ पे हमें लर्न करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। देखिए बेटा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देने जा रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन के ऊपर वो डायग्राम यहाँ पे मैंने अरेंज कर दी वाली है। चलिए, इसमें मैंने एक छोटा सा बीकर लिया है। आई टेक अ स्मॉल बीकर हियर। देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्या लिया बेटा, बीकर लिया है। जैसे कि आई हैव टेक अ स्मॉल बीकर एंड एडेड ए मोर देन हाफ वाटर, है ना, आधे से ज्यादा यहाँ पे उस बीकर में मैंने पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने वाटर लिया है जैसे। ठीक है बेटा, तो वाटर दैट इज H2O। देखिए, ये वाला वाटर H2O मैंने यहाँ पे लिया वाला है। एक्चुअली ये जो वाटर है, इट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, वैश्विक द्रावक, है ना। जैसे कि कोई भी चीज नियर अबाउट, देखिए बेटा, वाटर में सोल्यूबल होते ही होते हैं, है ना बेटा। तो इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऐसे बोला जाता है। एक्चुअली उसी वाटर में मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे आई हैव एडेड हियर यस आयोनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड साल्ट। इस सोडियम क्लोराइड के साल्ट को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड व्हेन आई हैव एडेड द सोडियम क्लोराइड साल्ट यस एज अ सोल्यूट के रूप में, that time what happened? Of course, yes, after some time it goes to dissolve, that is NaCl goes to dissolve into the water. Homogeneous solution we have obtained there, है ना। एक जिनसी होमोजेनस सॉल्यूशन हमें यहाँ पे क्या होगा बेटा, मिलेगा, कुछ ही देर में मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? और यही कृति हम जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेकर करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को मैंने केरोसिन में ऐड कर दिया है, या पेट्रोल में ऐड कर दिया है, या डीजल में ऐड कर दिया है, तो वहां पे सोल्युबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बताता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा, इसके पीछे एक रीजन मिलता है, यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। एक्चुअली जैसे देखिए बेटा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है। क्या होती है? यस, orient in a particular manner around the ions separated by the dissociation process। जब पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे क्या करते हैं बेटा, जो आयोनिक कंपाउंड के ऊपर पूरे वो छा जाते हैं और वहां पे उसे डिसोसिएट करते हैं। जैसे कि अभी देखिए बेटा, यहाँ पे NaCl आयोनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे Na+ ये डिसोसिएट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे Cl ये डिसोसिएट होता है, अलग होते हैं, सेपरेट होता है, हम इसको विचरण बोलते हैं, है ना।
और ये विचरण करने की क्षमता उस वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो वहां पे हमें वो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें इस्टेब्लिश होता है वाटर मॉलिक्यूल में टू डिसोसिएट टू द प्रॉपरली सोडियम क्लोराइड दैट इज आयोनिक कंपाउंड। उस आयोनिक कंपाउंड के जो जो अलग अलग आयंस होते हैं उसे वो डिसोसिएट करता है Na प्लस के रूप में, Cl माइनस के रूप में। ये वाटर को डिसोसिएट करने के लिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें वो क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे इस्टेब्लिश होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो रिजल्ट होता है, ठीक है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इस्टेब्लिश बिटवीन द आयंस। The surrounding water molecules replaces the original intermolecular attraction. ठीक है बेटा, and aqueous solution of ion compounds are formed. तो ऐसे aqueous solutions ion compounds यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वाटर में पॉसिबल होता है, लेकिन यही हमें ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा, जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे बताया गया है कि इनसोल्युबल सॉल्वेंट लाइक केरोसिन लाइक पेट्रोल। यस, अभी इसमें हमें रीजन क्या दिखाई देता है, बिकॉज अनलाइक वाटर जैसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये न्यू अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी एस्टेब्लिश इन दोज सॉल्वेंट, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इस सॉल्वेंट में ये नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, ये एग्जाम में साइंटिफिक रीजन के लिए पूछा जा सकता है, वेरी IMP। चलिए, वी हैव गो टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Student, we have learned here the last property is related to the ionic compounds. Actually, in this property, you have learned here the ionic compounds when in the solid form. That time they show the bad conductor of the electricity. Bad conductor of the electricity when they are in a solid form, and when they are being molten and soluble into the water form, that time they show the good conductor of electricity. Very interesting one there. How it's, देखिए बेटा ये कैसे और क्यों। देखिए बेटा, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन हमें यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। यही रीजन हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अभी देखेंगे। देखिए बेटा, आई हैव अरेंज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन द स्क्रीन। आई हैव टेक हियर द वन स्मॉल बीकर। ठीक है, and in this beaker I have added the water more than half. Yes, and into that water I have added the ionic compound, that is a sodium chloride salt. I have added it. Yes, automatically it goes to the dissolve there. That is one of homogeneous solutions we have obtained into that beaker. Again into that solvent, that is इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट हमें यहाँ पे मिलता है। Yes, I have suspended the two electrodes. Yes, as shown in a figure. देखिए बेटा, I have suspended the two electrode. That is one carbon electrode, another that is one I have a carbon electrode. I have suspended it, and their free ends I have connect the battery with the connecting wire. ठीक है बेटा, and I have passed the current. Actually, when I have passed the current, what happened? Yes, automatically ions goes to the dissociate. जैसे देखिए बेटा, ionic compounds जैसे NaCl था ना, तो NaCl से यहाँ पे आयंस क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं। एक्चुअली वाटर में आयन सेपरेट होते हैं, हमने पहले स्लाइड में उसे लर्न किया है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास होती है तो वहां पे क्या होता है बेटा, जैसे आयन जब सेपरेट होते हैं Na प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में, और जैसे ये आयन सेपरेट हो गए, देखिए बेटा कैथोड का जो सरफेस होता है वहां पे हमें Na प्लस वहां पे डिपोजिट होता है। यहाँ पे Na प्लस क्या होगा बेटा, डिपोजिशन होता है, Na प्लस का डिपोजिशन होता है। चलिए, और एनोड के ऊपर, जैसे यहाँ पे एनोड के ऊपर यहाँ पे Cl जो क्लोरीन होता है गैस के रूप में, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे जैसे इवॉल्व होते लिबरेट होता है यहाँ से।
है ना, बबल के रूप में यहाँ पे क्या होता है बेटा, लिबरेट आउट होते हुए दिखाई देता है। एक्चुअली देखिए बेटा, इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें यहाँ पे क्या लर्न करने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आयंस आर सेपरेट, आयंस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सेपरेट। यहाँ पे एक्सचेंजेस क्या हो रहा है बेटा, आयंस यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे एक क्या होता है बेटा, एक जैसे सर्किट फ्लो यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब ये जो सर्किट फ्लो बनेगा, जैसे यहाँ पे Na+, जैसे कैथोड के ऊपर डिपोजिशन के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे Cl, जैसे कि एनोड के ऊपर यहाँ पे बबल्स के रूप में यहाँ पे लिबरेट होते हुए या यूहोल होते हुए वहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो एनोड के ऊपर हमें जो दिखाई देते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनायंस। और जो कैथोड के ऊपर जो होता है, जैसे कैथोड, दैट इज वन है कैटायंस। ऐसे आयंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे सर्किट क्या होता है बेटा, पूरा होते हुए दिखाई देता है। और देखिए यही कॉज है, इट्स अ कॉज। ठीक है बेटा, इट इज अ कॉज दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ सेपरेशन ऑफ आयन। जैसे मोल्टन फॉर्म में होता है तो यही कारण यहाँ पे दिखाई देता है, समझ में आता है। लेकिन जैसे आयनिक कंपाउंड जैसे सॉलिड के रूप में होते हैं या क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे क्या होता है बेटा, जैसे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो आयंस क्या होते हैं बेटा, सेपरेट। यहाँ पे चार्जेस होने के कारण, अपोजिट चार्जेस होने के कारण वहां पे ग्रेट अट्रैक्शन होता है। और ग्रेट अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है बेटा, उसमें जैसे एक फोर्स बनता है, तो उसी कारण यहाँ पे बाइंड होते हैं वो, है ना बेटा, कंपाउंड्स के रूप में वो क्या करते हैं, हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। वहां पे कौन सा फोर्स मिल रहा है बेटा, दैट इज अट्रैक्टिंग फोर्स, है ना। तो अट्रैक्टिंग फोर्स में एक्चुअली यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अपोजिट चार्जेस, ठीक है, तो वहां पे ग्रेट अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, दैट इज अ विच काइंड ऑफ फोर्स हियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। yes, it's a very powerful force, and due to its, yes, electrons are fully tight binded, not free state, वो फ्री नहीं होते हैं, मूव ही नहीं कर सकते। तो इसी कारण जैसे क्रिस्टल फॉर्म में आयनिक कंपाउंड होता है या सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड होता है, तो यस, दे शो द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वही आयनिक कंपाउंड जैसे मोल्टन फॉर्म में हो या डिजोल्व फॉर्म में हो, दे शो द गुड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हियर। चलिए यही यहाँ पे बताया है। जैसे देखिए बेटा, अभी इस प्रॉपर्टी को हम रीड करेंगे। जैसे देखिए बेटा, ये द आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन अ सॉलिड स्टेट। yes, okay, in this state the ions cannot lose their places। आयंस पूरी तरह से वहां पे उसका प्लेस छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि फुल्ली बाइंडेड होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए एक्चुअली when fused and molten state, yes, they conduct the electricity। तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, मोल्टन फॉर्म में हो तो। मोल्टन यानी कि वितळलेला बोलते हैं हम इसको। एक्वेस यानी कि जलीय। जैसे जलीय फॉर्म में हो तो क्या बेटा, आयंस कंपाउंड्स, यस ओके, दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस क्या हो रहे हैं, सेपरेट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, जैसे Na+ के रूप में, Cl- के रूप में। देखिए बेटा, तो ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो देखिए वो प्रॉपर्टी ये वाली हम रीड कर सकते हैं, रीड करके उसे हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सिंपली, इट्स अ वेरी सिंपल वन देयर। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछना है। थैंक यू।